Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will learn about functioning of kidney and osmoregulatory function of kidney. First we will discuss about functioning of kidney. Kidney complete their function in 3 steps. First step is pressure filtration, which takes place in renal corpuscle. Second step is selective reabsorption, which takes place in renal tubule. And the third step is tubular secretion, that takes place in renal tubule. इनकी डिटेल सीखते हैं हम क्लास. The main function of kidney is urine formation, which takes place in 3 steps. The first step is pressure filtration. When blood enters the kidney via the renal artery, it goes to many arterioles and then to glomerulus. The pressure of blood is very high, and so most of the water, salts, glucose and urea of blood is forced out of glomerulus capillaries. This material passes into the Bowman's capsule and is now called glomerulus filtrate. गुर्दे का अहम काम यूरिन बनाना है और गुर्दे ये काम 3 मराहल में मुकम्मल करते हैं. पहला मरहला प्रेशर फिल्ट्रेशन है. जब रेनल आर्टरी से खून गुर्दे में दाखिल होता है तो ये बहुत से आर्ट्रियोल्स में और फिर ग्लोमेरुलस में जाता है. यहाँ ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और ख़ून का ज़्यादातर पानी, नमकियात, ग्लूकोज और यूरिया प्रेशर की वजह से ग्लोमेरुलस की कैपिलरी से बाहर आ जाता है और ये सारा मवाद बोमैन्स कैप्सूल में चला जाता है और अब इसे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहते हैं. साइड बॉक्स देखें क्लास. इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू पूछा जा सकता है इसमें से. ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन्स आर नॉट फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज बिकॉज दे आर रिलेटिवली लार्जर इन साइज़. ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज से ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स फ़िल्टर नहीं होते क्योंकि इनका साइज़ निस्बतन बड़ा होता है. सेकंड स्टेप की डिटेल देखते हैं. The second step is the selective reabsorption. In this step, about 99% of the glomerulus filtrate is reabsorbed into the blood capillaries surrounding renal tubule. It occurs through osmosis, diffusion and active transport. And we already know about osmosis, diffusion and active transport. Osmosis is the movement of water molecules from a dilute solution to a concentrated solution across semi-permeable membrane. Diffusion is the movement of molecules from an area of higher concentration to the area of lower concentration. And active transport is the movement of molecules from an area of lower concentration to higher concentration. And in this process, energy is used in the form of ATP. Some water and most of the glucose is reabsorbed from the proximal convoluted tubule. Here salts are reabsorbed by active transport and then water follows by osmosis. The descending limb of loop of Henle allows the reabsorption of water, while the ascending limb of loop of Henle allows the reabsorption of salts. The distal convoluted tubule again allows the reabsorption of water into the blood. डायग्राम में देखें क्लास. नेफ्रॉन के अराउंड ब्लड कैपिलरीज हैं जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का 99% मटीरियल को रीएब्जॉर्ब कर लेती हैं. यहाँ पर जो रीएब्जॉर्प्शन है वो ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए होती है. पानी और ज़्यादातर ग्लूकोज ये जो रेनल ट्यूब्यूल है इसके पहले बलदार हिस्से में जज़ब हो जाते हैं. इसी तरह लूप ऑफ हेनले के नीचे जाती नाली में पानी, जबकि ऊपर जाती नाली में
नमकियात का वापसी इंजज़ाब होता है और रेनल ट्यूब्यूल की आखिरी बलदार नाली में दोबारा से पानी का इंजज़ाब होता है। थर्ड स्टेप है ट्यूबुलर सेक्रीशन। द थर्ड स्टेप इज़ द ट्यूबुलर सेक्रीशन। डिफरेंट आइंस, कैरेटिनाइन, यूरिया एट्सेट्रा आर secreted from blood into the filtrate in renal tubule. This is done to maintain blood at a normal pH 7.35 to 7.45. After the above mentioned steps, the filtrate present in renal tubule is known as urine. It moves into collecting duct and then into pelvis. तो थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है क्लास? तीसरा मरहला है ट्यूबुलर सेक्रीशन। इस दौरान बहुत से आयंस, कैरेटिनिन, यूरिया वगैरह को सेक्रीशन बनाकर खून से रेनल ट्यूब्यूल में दाखिल कर दिया जाता है और इसका बुनियादी मकसद होता है खून की पीएच को नॉर्मल रखना, जो कि है 7.35 से 7.45 तक। इन तमाम मराहल के बाद रेनल ट्यूब्यूल में जो फिल्ट्रेट बचता है उसे यूरिन कहते हैं। ये कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है और फिर रेनल पेल्वस में आ जाता है। नाउ सी क्लास नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन, जिसमें हमें यूरिन के अंदर वाटर कितने परसेंट होता है वो दिखाई दे रहा है। इसी तरह यूरिया की कंसंट्रेशन और डिफरेंट आयंस की कंसंट्रेशन दिखाई दे रही है। इस टेबल से एमसीक्यू किया जा सकता है, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। You know that class, we already discussed about osmoregulation in this chapter. Osmoregulation is the maintenance of amounts of water and salts in body fluid, that is blood and tissue fluid. Again, we discuss about osmoregulation, and osmoregulation is defined as the regulation of the concentration of water and salts in blood and other body fluids. Kidneys play important role in osmoregulation by regulating the water contents of blood. ऑस्मोरेगुलेशन बॉडी फ्लूइड के अंदर वाटर और सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना है और हमारी बॉडी के अंदर ये काम जो है मींस कि ऑस्मोरेगुलेशन का जो रोल है वो किडनीज़ प्ले करती हैं। किडनीज़ किस तरह ये रोल प्ले करती हैं क्लास, उस हिसाब से अपना रोल प्ले करते हुए किडनीज़ दो तरह का यूरिन बनाती हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। व्हेन देयर इज़ एक्सेस वाटर इन बॉडी फ्लूइड, kidneys form dilute hypotonic urine. For this purpose, kidneys filter more water from glomerulus capillaries into Bowman's capsule. Similarly, less water is reabsorbed and abundant dilute urine is produced. It brings down the volume of body fluid to normal. जब हमारे बॉडी फ्लूइड में ज़्यादा पानी मौजूद होता है तो किडनी डाइल्यूट यानी हाइपोटोनिक यूरिन बनाती हैं। इस मकसद के लिए किडनीज़ जो हैं वो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज से बोमैन्स कैप्सूल में ज़्यादा पानी फ़िल्टर करती हैं और पानी की रीएब्जॉर्प्शन जो है उसको कम कर देती हैं। इस तरह डाइल्यूट यूरिन बनता है और हमारे जो बॉडी फ्लूइड है उसमें पानी की जो कंसंट्रेशन है वो कम होकर नॉर्मल हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह व्हेन देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन बॉडी फ्लूइड, kidneys filter less water from glomerulus capillaries and the rate of reabsorption of water is increased. Less filtration and more reabsorption produce small amount of concentrated or hypertonic urine. It increases the volume of body fluid to normal. This whole process इज़ अंडर हार्मोनल कंट्रोल। इसी तरह क्लास जब हमारी बॉडी फ्लूइड में पानी कम होता है तो ग्लोमेरुलस की कैपिलरी से कम पानी फ़िल्टर होकर बोमैन्स कैप्सूल में जाता है और पानी की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा दिया जाता है। और इसी तरह फिर कम फिल्ट्रेशन और ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन से किडनीज़ कम और गाढ़ा यानी हाइपरटॉनिक यूरिन बनाती हैं। इससे हमारी बॉडी के फ्लूइड में पानी की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होकर नॉर्मल हो जाती है। और ये तमाम काम जो है ये हार्मोन्स के कंट्रोल में होता है, हार्मोन्स के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। होप सो क्लास आप लोगों को इस लेक्चर से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़ क्लास।